کتنی انبیاء بھی لڑکیاں تھیں. ضرورت ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا ختم. چائنا کامیاب ہے اور کمیونسٹ وہ کہاں کامیاب ہے, وہاں کیپٹلسٹ کو آپ دیکھتے کس طرح. عورت مارچ کے حوالے سے آئے ہیں جی بالکل. کیا رائٹس ہیں آپ کے؟ میرے رائٹس نہیں, کن رائٹس کی بات کرنے آئے نا آپ؟ وومن رائٹس کی بات کرنے ہیں, ایون جینڈر ایکویلٹی کی بات کرنے ہیں. کس طرح کی جینڈر دیکھ رہے ہیں مطلب خواجہ سراج کی بھی جو سی ہے وہ پرفارمنس وغیرہ ہے, یعنی فیمنزم یا پھر عورت مارچ کے یہ سلوگن نہیں ہے کہ خالی عورت کو امپاورڈ کیا جائے, ساروں کو, سارے جو بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو برابری دی جائے سارے لوگوں کو. جینڈر ڈسکریمنیشن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہے؟ بالکل ہے. آرٹیکل 25 کا پتہ ہے آئین کے اندر ہے رائٹس کے اوپر. میں خود لا کے اسٹوڈنٹ ہوں. ہاں تو وہ تو پورے رائٹس دیتا ہے بھائی, وہ دیتا ہے پریکٹیکلی کیا ہے اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے. ایسے تو ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, کیا جمہوری رائٹ ساروں کو مل رہے ہیں؟ ہوا یہاں پر یہ ہے کہ لڑکیوں کو آ کر کہا گیا ہے کہ آپ انٹرویو دیں, جو نہیں دینا چاہ رہی انہوں نے اپنا کنسنٹ نہیں دیا, ان سے زبردستی انٹرویو لیا جا رہا تھا. زبردستی کوئی بھی نہیں لیتا ہے. اوبویسلی ایسے ہی ہوا ہے. آپ سے زبردستی کی ہے میں نے؟ ہاں جی, آپ نے نہیں کی, آپ کے باقی میڈیا پرسن جو آپ کے فیلو کولیگز ہیں زبردستی آ کے وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف کنسنٹ ہے بھی کہ نہیں دینا, پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں دیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی جبکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے زبردستی ہوتی ہے؟ بالکل فریڈم. لیکن اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بیسیکلی جب بھی عورت مارچ کے حوالے سے ایک سوال کیا جاتا ہے بار بار, کرے کیا ہے سوال, جتنے بھی جوابات مل جائیں نا, ایک الزام لگتا ہے آپ لوگوں کے اوپر, وہ الزام یہ لگتا ہے کہ عورت مارچ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایک ایسے نہیں. مذہب ہے جو عورت کو اتنا حق دیتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں ہومو سیکچولیٹی کو کانسٹیٹیوشن کی طرح, یہ بھی کانسٹیٹیوشن. ایک منٹ, ایسے نہیں. آپ نے مختلف انٹرپریٹرز پڑھے ہیں, آپ نے شبیر علیہ کا پڑھا, آپ نے اسلامی اسکالر ہے جو مطلب ایون کے نام ہے ایک, وہ آمینہ ورود لڑکی ہے, وہ کہتی ہیں انبیاء بھی لڑکیاں تھیں. آپ کو پتہ کتنے اختلافات ہیں اسکالرز کے درمیان. میری بات سنیں, اس چیز ساری چیز کو سائڈ پہ رکھیں, آپ اسلام کی ہی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں بتا رہا ہوں کانسٹیٹیوشن جس طرح سے آپ کے سامنے ہے نا, جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وومن رائٹس ہیں, لیکن پریکٹیکلٹی میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے مان لیتے ہیں اسلام کے اندر بھی ساری چیزیں پریکٹیکلٹی میں نظر آ رہا ہے. ہم اسی رائٹس کے لیے نکلیں جو آپ کا بنیادی سوال. مثال کے طور پہ نکاح کے لیے کنسنٹ چاہیے لڑکی کی, ہاں چاہیے, بالکل لڑکی پہ پریشر نہیں ہوتا, ہم مانتے ہیں ہوتا ہے. یہ معاشرے کے اندر ڈسٹریکشن ہے یا نہیں ہے؟ سارا تو معاشرہ ایسا نہیں ہے نا, پانچوں کا سارا ہی ایسا ہے نا, زبردستی شادی ہو رہی ہے, زبردستی شادی ہو رہی ہے. آپ نہیں بتا رہے کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے سوشلزم کے حوالے سے کوئی ایک کنٹری بتا رہے جو کامیاب ہے. چائنا کامیاب ہے اور کمیونسٹ وہ کہاں کامیاب ہے, وہاں کیپٹلسٹ کو آپ دیکھتے کس طرح ان کے بتائیں مثال کیا چائنا کا بتائیں کس طرح کامیاب ہے, کس طرح ان کی معیشت دیکھ لو کہاں پر ہے. کہاں معیشت کتنے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے چائنا کے اندر, کتنی آزادی, میڈیا کی آزادی نہیں ہے, وہ فریڈم آف. اچھا ہم بیسٹ پاسبل نظام کی بات کرتے ہیں, یہاں وہاں کی نہیں ہو رہی بات, ایک سسٹم کی ہو رہی ہے. کون سی کنٹری سکسیسفل ہے؟ میں تمہیں سوشلزم کا کہوں گا, تم کہو گے سوشلزم تو خود ہی سکسیسفل نہیں ہے, تو میں کس کے اوپر جاؤں؟ سر چھوڑ یہ بات. عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ آرگنائزر موجود ہیں ہبا جی, ان سے بات کریں گے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ کن رائٹس کے اوپر یہ ہو رہا ہے, آرٹیکل 25 کی امپلیمنٹیشن یا اس میں کچھ ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں رائٹس کی اسٹرگل تو بڑی لمبی ہوتی ہے اور بڑی سلو چلتی ہے, یہ تو نسل در نسل کی اسٹرگل ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ نا ایک تھیم پک کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں نا ان کو بھی ذرا اسٹرکچر مل جائے, آرگنائز ہو جائے. زمانہ بدل رہا ہے, ہم نے یہ ایشوز اس لیے اٹھائے کیونکہ اگر آنر کلنگ کی جس طرح بات کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ ٹھیک ہے چیزیں, آنر کلنگ ٹھیک ہے, غیرت کے نام پہ قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. ہم بات کہتے ہیں, ہم لوگوں کی بات نہیں ابھی کرتے, بڑی انٹلیکچوئل گفتگو چل رہی ہے. میں سمپل بات کروں گا سسٹم کی. آپ کس سسٹم کے تحت سمجھیں کہ خواتین کی رائٹس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے, خواتین کے رائٹس کو لے کے چلا جا سکتا ہے, خواتین کے حقوق کا تحفظ مل سکتا ہے. ایک سسٹم پاکستان کے اندر ہے اسلامک سسٹم, اس کو بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. وہ کون سا سسٹم ہے؟ ایک اسلامک سسٹم ہے, ایک سوشلسٹ سسٹم ہے. آپ کس سسٹم کے تحت سمجھیں اگر یہ سسٹم رائج کیا جائے تو خواتین کے لیے تحفظ ہے؟
आपने ना 18 सवाल एक आखिरी में सवाल का जवाब दे दें। आप भी जरा इसके ऊपर 15 मार्क कैसे लिख देते हैं? मेरे ख्याल से कोई 30 पेज का research, 30 पेज का research सिर्फ यार आपने बड़ी तकलीफ कर दी ये यार तो सारी। आपने तो जवाब ही खुद अपना दे दिया। चले, सिस्टम का बता रहे। क्या जरूरत है यार? बस ठीक है, हो गया खत्म सिस्टम का बता इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ख़वातीन के हवाले से आज औरत मार्च है, आलमी दिन भी है। यहाँ सास से भी आज़ादी चाहिए, क्या आप अपनी बहू को आज़ादी देंगी? उसके पास बहुत आज़ादी है। नहीं, आप क्या समझते किस तरह की आज़ादी चाहिए? हमारा आइन आर्टिकल 25 औरत को आज़ादी दे तो रहा है, अब फिर लड़ाई किस चीज़ की? लड़ाई का मुझे नहीं पता, मगर जो हमारे हक है मांग रहे। क्या हक है आपका? जो आप राइट्स की बात कर रहे हैं, घर में राइट्स, काम में राइट्स, जो भी आजकल हालात हैं, जो भी सब कुछ जो है आपके सामने ही है, मैं क्या कहूँ। तो क्या ख़वातीन के अंदर ऐसी आस्तीन के सांप मौजूद नहीं हैं जो आप समझते हैं कि वो खुद ही ख़वातीन की दुश्मन है? नहीं बिल्कुल आप नहीं। नहीं। अच्छा, तो फिर सास बहू की लड़ाई क्यों है? नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का। मुझे ये पता है कि औरत को अपना हक मिलना चाहिए। ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं, मुझे इन बातों का नहीं पता। अच्छा, और मेरे घर में होता है ना, मैं इस मौजू पे बात करूँगी। अब तमाम ख़वातीन के हक के लिए निकली हुई हैं। मुझे ये बता दें कि इलाका की जानब से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है कि औरत मार्च के अंदर हम जिन्स परस्ती कर रहे हैं। सॉरी, हमारे साथ मौजूद हैं औरत मार्च को प्रोटेक्ट करने वाले और वॉलंटियर हसनैन जमील अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन साहब, मुझे ये बताएं कि किन राइट्स की यहाँ बात हो रही है? हालांकि पाकिस्तान का आइन जो है वो आर्टिकल 25 औरतों को पहले ही राइट्स दे रहा है, इधर कौन से राइट्स की बात हो रही है? आप पाकिस्तान में आइन में बड़े राइट्स कहे गए हैं, लेकिन नहीं दिए जाते। आर्टिकल का 3 कहता है कि रियासत की जिम्मेदारी है सबको घर देना, सबको खुराक देना, रियासत जिम्मेदारी अदा कर रही है। और भी आइन के अंदर बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद है, ये चीज़ें आइन में मौजूद हैं, आप हमें वो आज़ादियाँ दें। क्या आज़ादी चाहते हैं कि वो जो मर्जी कपड़े पहने, तंग कपड़े पहने, वो बाहर निकलें और लोगों को लजाती फिरें? हमारा माशरा तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मर्दों को भी इजाज़त नहीं देता, मर्द सब करते हैं। आपने पैंट शर्ट भी पहनी है, और भी लोगों ने मर्जी अपने कपड़े पहने होते हैं। मर्जी के कपड़ों की इजाज़त हर किसी को है। जब ये सारे बाहर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते बाहर जाके ख़वातीन को, बाहर की ख़वातीन कैसे कपड़े पहनती हैं, इनके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इनके अंदर अपना मसला है मर्दों के अंदर। तो हमें अच्छा मर्द बनना है। अगर बाहर के लोगों के हम मिसालें देते हैं कि वो बड़ी डिसिप्लिन सोसाइटी है, वहाँ पे ख़वातीन रात को 12 बजे निकल सकती हैं। आप मुझे बताएं रात को 10 बजे कितनी ख़वातीन रोड पे? निगोशिएशन से बातें हो सकती ना, इस तरह सड़क पे निकल के औरतों को क्या ये सड़क पे निकलना पड़ता है। बाप से आज़ादी, मेरा जिसे मेरी मर्जी को किस तरह डिफाइन करते? तो सही है, इसमें मेरा जिसम है, अब आपकी मर्जी होगी, आप इसे पेड़ मार दें। मेरा जिसम है, इस पे इसका मतलब यही है कि ख़वातीन को अपनी मर्जी का, उनके ऊपर वो जो है वो उनका राइट है कि वो जो मर्जी पहने, जहाँ मर्जी जाएं, उनको कोई रेप ना करे, उनके ऊपर कोई तशद्दुद ना करे। इंटरनेशनल लेस्बियंस एंड गेज का एक फोरम है जहाँ बाकायदा तौर पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसके में कहा गया कि स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च और औरत मार्च वो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है। इस बारे में ये इल्ज़ाम है, आप क्या कहते हैं? सर, ये इल्ज़ामात तो बड़े हैं, लोग बात पूरी सुनते नहीं हैं। केस करें उनके ऊपर। सुनी सुनाई बातों पर वो जो है लोग बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे देखें किस तरह के इश्यूज़ पे बात हो रही है, माहौलियात पे बात हो रही है, जो ज़हनी तशद्दुद ख़वातीन पर जिस्मानी तशद्दुद होता है उस पर बात हो रही है, और भी जितने अहम मसाइल हैं उनके ऊपर बात हो रही है। अगर आपने जो नॉन इश्यूज़ पे बात करनी है तो उसके लिए तो यूट्यूब पर उसके पास बड़ा कुछ भरा पड़ा है, आप जो मर्जी बात कर लें। लेकिन बात यही है कि आप उनकी बात सुने। एक दिन है 8 मार्च, एक दिन है, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं होता। बाकी आप पूरे 364 दिन सड़कों पे खजल हो रहे होते हैं, आप रोडों पे आपने सारे आपने कब्जे किए हुए हैं। कोई बंदा किसी पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं करता। मैं नंगा भी आ जाए, क्या नंगा भी आ जाए, ना पहने। सर, सोसाइटी के यहाँ पे कितने लोग रंगे? नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की तो कदर होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे कदर है, सब कर रहे हैं। यहाँ भी जितनी खवातीन नहीं है, कोई नंगी नहीं है, खुदा ना खास्ता। आप इस तरह की बातें ना करें। मर्द बात करें, मेरे भी बात करना नहीं बनता। आज खवातीन का दिन है, आप खवातीन से बात करें, उनके मसाइल पे बात होनी चाहिए। मेरा हक भी नहीं बनता कि मैं खवातीन के मसाइल को एड्रेस करूँ। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25 औरत को उसका हक देता है, ठीक है। औरत मार्च में ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सड़कों पे निकल कर ही मांगे जा सकते हैं? आइन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो राइट्स देते हैं, लेकिन बात है इम्प्लीमेंटेशन की। वो राइट्स आपको नज़र आ रहे हैं कहीं कितने रेप्स होते हैं, और आपके इदारे क्या कर रहे हैं उन रेप्स की रोकथाम के लिए? आइन में जो भी फिर जो राइट्स हैं वो तो फिर रद्दी का टुकड़ा ही है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो रद्दी का टुकड़ा ही हुआ। तो बहुत बड़ी बात कर रही है, रद्दी का टुकड़ा आइन को कह रही है आप। जब मुझे पता है कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे कोई प्रोफेसर हरास करेगा या मेरा बॉस मुझे मेरे ऑफिस में हरास करेगा और मैं बोलूँगी तो मैं बाहर ही जाऊँगी।
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर वो अच्छा, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर औरत को हक है, उसके राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल आप भी यही चाहती हैं जो डोमेस्टिक, लेकिन तंग कपड़े पहनने की आज़ादी, इसकी क्या मतलब, इसकी समझ नहीं आई। इसकी बात यह है कि आप औरत को एक इंसान समझ के कबूल करें, अपने बराबर का इंसान। अगर वो तंग कपड़े पहनने की आज़ादी से ये मुराद नहीं है कि वो तंग कपड़े ही पहनना चाहती है, ये एक उन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर एक औरत को आप बराबर का इंसान समझेंगे, अगर आप मुझे बराबर का इंसान समझे मैं आपको, तो मैं अपने लिए जो चूज़ करूँगी वो मेरा पर्सनल फ्रीडम ये है कि मैं जो मर्ज़ी खाऊं, जो मर्ज़ी पहनूं, जिस तरह मर्ज़ी उठूं बैठूं, मुझे कोई ना बॉदर करे, तो आपके लिए भी मैं वही सोचूंगी। लेकिन ये हमारे जो हमारी सोच है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, औरत के को हम किसी और जाविये से देखते हैं। डेमोक्रेसी मानती हैं आप? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल मानती तो हूँ, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत में अक्सरियत को भी मानती है। बिल्कुल मानती हूँ। पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत इस्लाम के मानने वालों की है, और वो अक्सरियत ये कहती है कि औरत को पर्दे का हुक्म है, वो अक्सरियत ये कहती है कि औरत को जो इस्लाम के अंदर राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। जो आपकी अक्सरियत है ना, उसमें अक्सर अकलियत दब जाती है। अक्सरियत का मतलब ये नहीं है कि अकलियत के कोई जज्बात नहीं है, उनके राइट्स नहीं है। ये तो फिर ये बात हुई 96% इस्लाम है इस मुल्क में, हिंदू और क्रिश्चियन मर जाए, उनको आग लगा दो। इस्लाम इजाजत, कि अगर 100 में से 90% कह रही हैं कि हमने पर्दा करना है, तो 10% को भी करवाओ। अगर वो नहीं करना चाह रही तो आप कौन होते हैं? नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी है ना सोसाइटी की, उसको किस तरह, वैल्यूज से हट के कोई काम नहीं हो रहा। कोई इधर नंगी फिर रही है, मुझे दिखा दे। मैं उस हवाले से बात नहीं कर रहा, नंगा तो खैर ना नंगा होना ना ही मतलब नहीं, आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, कौन सी वैल्यूज के खिलाफ, कौन सी वैल्यूज के मुनाफी बात हो रही है यहाँ पे? मैंने पूरे कपड़े पहने। मतलब वो ये कहते हैं कि इस्लाम ने जितने राइट्स दिए हुए हैं दुनिया का कोई मजहब नहीं देता, जितने राइट्स इस्लाम ने औरत को। बात ये है कि इस्लाम ने वो राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन मर्दों ने एब्रोगेट किए हुए हैं। मर्दों ने किन बनाए मर्दों हुए हैं? आप मर्दों ने, आप यू आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। मैं पार्ट हूँ। हाँ बिल्कुल आप हैं, इसका मतलब सारे मर्द प्रॉब्लम बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, निकाल दें सारे मर्दों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। पांचों उंगलियां एक जैसी तो नहीं ना होती? नहीं, देखिए जो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, जो जैसी हैं वो कोशिश करें, जो जैसी नहीं है उनको भी जैसा करें। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। शुक्रिया।